welcome to the physics class. So this is the second lecture based on vectors. In the previous lecture we have discussed what are scalar, what are vectors, and what is position vector, what is displacement vector, and representation of a vector. Okay, so continuing the previous lecture, today we are discussing the characteristics of a vector. It means if a quantity is a vector quantity, then what should be the characteristics of that quantity. So there are different types of vectors. First is equal vectors. If you have two vectors A and B, how can you say that they are equal vectors? Means when two vectors be equal, दो vectors कब equal हो सकते हैं? Equality of vector क्या है? Okay, so कुछ conditions हैं. Two vectors will be equal to one another when magnitude and direction of both the vectors are same. It means यहाँ देखिए दो मैंने एरो ड्रॉ किए हैं, दोनों एरो की लेंथ भी बराबर. अगर मान लो 7 सेंटीमीटर इसकी है तो 7 ही इसकी होगी. दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो दो वेक्टर्स का और डायरेक्शन भी सेम हो, जिस डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर उस डायरेक्शन में सेकंड वेक्टर है, देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, if two vectors have equal magnitude and same direction, then they are called equal vectors. Suppose A vector is 7 centimeter east, okay, then B vector is also 7 centimeter east. It means they are having the equal magnitude and same direction, so A and B are equal vectors. What will be it? Equal magnitude and same direction. Equal magnitude and same direction, that is called equal vectors. Okay, this is the first condition for vectors. And second condition, negative vectors. Negative vectors. Okay, so what are the negative vectors? Means two vectors are negative of one another. How is it possible? Okay, if two vectors are having equal magnitude but opposite direction, equal magnitude but opposite in direction. Okay, suppose we have a vector, another vector is this 7 centimeter, this is also 7 centimeter, but direction is opposite, ये ईस्ट में तो ये वेस्ट में. So this is called negative of a vector minus a vector लिखा जाएगा इसको. If we want to draw negative of a vector, means मतलब अगर आप एक वेक्टर का नेगेटिव ड्रॉ करना चाहते हो, आपके पास एक वेक्टर है 10 सेंटीमीटर का, उसका नेगेटिव ड्रॉ करो और वो ईस्ट में है जो पहला है, मतलब 10 सेंटीमीटर ईस्ट का आपके पास वेक्टर है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? 10 सेंटीमीटर वेस्ट. मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस से हो जाएगा इफ इट इज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, इसके बाद आता है जीरो वेक्टर. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो. मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा? अब मान लीजिए ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर है, और आप इन दोनों वेक्टर्स को सम करते हो, ए प्लस माइनस ए वेक्टर को अगर आप सम करोगे तो आंसर विल बी जीरो. जीरो विल बी अ वेक्टर. ओके, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, दैट वेक्टर इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक में. ओके, now we are discussing the fourth characteristics, that is most important characteristics of a vector,
that it unit vector of a vector. एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? ओके, डेफिनेशन है वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, और यूनिट का मतलब होता है यहाँ पे 1, यूनिट का मतलब 1, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन same as that of given vector and direction same as that of given vector. अब आपके पास क्या समझो, आपके पास एक वेक्टर है a, ये गिवन वेक्टर है आपके पास, इस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ये वेक्टर इज 7 सेंटीमीटर ईस्ट. ओके, you have to draw the unit vector of this vector. तो आपको क्या करना है, यूनिट लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है, यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर का, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए जिस डायरेक्शन आपका गिवन वेक्टर है. गिवन वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है? इसमें. तो 1 सेंटीमीटर लेंथ का वेक्टर इस डायरेक्शन में कर दो, ड्रॉ कर दो. दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर. तो एक वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर बन गया. यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यूनिट का मतलब 1 हो और डायरेक्शन उसकी सेम हो जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है. गिवन वेक्टर डायरेक्शन ईस्ट है तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन भी ईस्ट ही होनी चाहिए, बट मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. ऊपर ये सिंबल लगेगा ऐसे करके, ऊपर ए के ऊपर, ये एक्चुअली में ये होता है, बड़ा करके लिख रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं कैप. ये कैप लग जाते हैं उसके. ओके, so this is a cap is called unit vector. a cap is unit vector. किसी भी यूनिट वेक्टर अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो सिंबल लगाओ वेक्टर का, मतलब a, और उसके ऊपर कैप लगा दो. दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a, गिवन वेक्टर. ओके, और यूनिट वेक्टर को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को मैं सिंपल a से भी लिख सकता हूँ या मॉडुलस लगा के भी लिख सकते हो आप. ये उसका मैग्नीट्यूड ही है. वेक्टर ले लो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. एक वेक्टर को उसी के वेक्टर से, उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. ओके, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन गिवन वेक्टर जैसी ही होती है. ओके, कुछ पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल. अगर एक्स एक्सिस में अगर आपने कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप होता है. आई कैप, आई कैप इज यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस. ऐसे ही जे कैप यूनिट वेक्टर फॉर वाई एक्सिस एंड के कैप यूनिट वेक्टर फॉर जेड एक्सिस. ओके, इट मीन्स अगर मैंने ये लिखा हुआ, अगर यहाँ से मैं एक्स आपको बताऊँ, मैं वेक्टर इधर लिख दूँ, ओके, तो ये इधर आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा? ये मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये बनेगा. तो इट मीन्स वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक मैग्नीट्यूड एक यूनिट वेक्टर, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर. अगर मैंने इधर एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया यहाँ तक जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिखूंगा 5i कैप. 5i कैप का क्या मतलब हो गया? ये वेक्टर है, 5 मैग्नीट्यूड हो गया और i कैप x एक्सिस के लिए डायरेक्शन होगी. इसका मतलब x एक्सिस में 5 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ करना है. अगर मैं इसको 5j कैप लिख दूं, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर की आपने लेंथ y एक्सिस में ड्रॉ करनी है. क्यों? क्योंकि j कैप है, j कैप y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है. यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है हमें. यूनिट वेक्टर गिव्स दी डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड इसका मतलब होता है डायरेक्शन सेम वेक्टर जैसी होती है. तो ये डायरेक्शन बता दी हमने कि j कैप y एक्सिस के लिए होता है. अगर 5k कैप लिखा हुआ, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर का आपने एक वेक्टर बनाना है इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस. I cap is the unit vector for x axis, j cap is the unit vector for y axis and k cap is the unit vector for z axis. Next, fifth characteristics of vectors are collinear vectors. Collinear vectors.
व्हाट आर कोलिनियर, को का मतलब यहाँ पे कॉमन, लीनियर का मतलब लाइन, ओके। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट मैग्नीट्यूड व्हाटएवर इट इज, अगर एक सेम लाइन में हो, सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एक ही लाइन में है, देखो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। सेम में हो, पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। इन ऑल द थ्री केसेस द वेक्टर्स आर कोलिनियर। इट मींस इफ यू हैव टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, इफ दे आर हैविंग सेम लाइन मूविंग अलोंग द सेम लाइन ही हो गए, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। They are called collinear vectors. And next characteristics is co-initial vectors. Co-initial vectors. Co का मतलब कॉमन, इनिशियल का मतलब इनिशियल पॉइंट सेम हो, कि स्टार्टिंग पॉइंट जिन वेक्टर्स का सेम है। सपोज वी हैव अ वेक्टर A starting from O and we have a vector B also starting from O, we have a vector C also starting from O. It means we have three vectors A and B, A, B and C. The three are starting from O, a common point. So the three vectors A, B and C are called co-initial vectors. They are called co-initial vectors. Okay. So what are co-initial vectors? Common point, initial point जो है वो common होना चाहिए. That is called co-initial vector. So here A, B and C are co-initial vectors. Another type of vector we are discussing, that is fixed or localized vector. Fixed or localized vectors. Fixed or localized means the vector whose starting point is fixed. हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट वो कहाँ से है। सपोज दिस इज अ वेक्टर, तो हमें पता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, और इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। तो द वेक्टर्स हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन, इनिशियल पॉइंट इज नोन, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। अनदर वन नॉन लोकलाइज्ड और नॉन फिक्स्ड, फ्री और नॉन लोकलाइज्ड। फ्री हो या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर हो, दैट इज, मान लो कई बार ऐसा होता है, ये डॉट लगने का मतलब है कि इसका हमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता, इनफिनिटी से है, कहीं नहीं पता हमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट हमें ना पता हो, जिस वेक्टर का हमें इनिशियल पॉइंट ना पता हो, दे आर कॉल्ड फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स्ड, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, दे आर कॉल्ड फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। Another characteristics of vector we are doing, that is multiplication. This is also important to be used in numericals. Multiplication of a vector by a real number. Multiplication of a vector by a real number. एक रियल नंबर से अगर आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दैट वेक्टर, ओके। सपोज वी हैव अ वेक्टर ए ऑफ 7 cm ईस्ट, ओके। व्हेन वी मल्टीप्लाई इट द वेक्टर बाय अ रियल नंबर दैट इज 2, what will be the effect on that vector? Only magnitude will be doubled, direction will be same. It means now this will be 14 cm east. It means when we multiply a vector by a real number, and if real number that is positive number, तो magnitude पे इफेक्ट करेगा, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी अगर एक पॉजिटिव है तो 14 cm ईस्ट, लेकिन अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, सो इट विल बी 14 cm वेस्ट हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, 14 cm वेस्ट हो जाता है। नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड 2 है तो 2 टाइम्स 3 होता है तो 3 टाइम्स। लेकिन अब पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन विल नॉट बी चेंज्ड।
Okay, so this is the effect of multiplication of a vector by a real number. It means only magnitude changes but डायरेक्शन विल बी चेंज ओनली इन नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव अगर इंटीजर होगा तो उसमें कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन विल बी एज इट इज, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा उतना टाइम जितना रियल नंबर है. और अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा जितना रियल नंबर है. 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, लेकिन नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन भी उसकी अपोजिट हो जाएगी. ओके, सो दीज सम आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ vector. I hope you all understood the today's topic. It will help you to understand the upcoming topics in upcoming lectures. Till then, thanks and have a nice day.